ਅਕਾਲ ਜੀ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟੂ ਆਲ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ? ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈਲਥ ਵਾਈਜ਼। ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਲੂ ਕੋਵਿਡ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਫਲੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਉਹ ਫਲੂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਫਲੂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਆ ਉਹ ਲੱਭੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਿਹਤ ਪੱਖੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਵਾਕ, ਜਾਂ ਈਵਨਿੰਗ 'ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲੂਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਟਿਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਡਾਈਟ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਮੈਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਿਸਟਰ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮਿਸਟਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਮਿਸਟਰ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਮਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਮੋਰ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਕਾਲ ਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਟਿਪਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸੰਦੀਪ ਡਾਂਗੀ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਦੀਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਦੀਪ ਡਾਂਗੀ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਦੀਪ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਓਕੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਸੰਦੀਪ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ तक ਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ हो? मैं बॉडी बिल्डिंग का जो मेरा कैरियर है वो मैंने स्टार्ट किया था ईयर 2000 में, बट पहला कंपटीशन मैंने compete किया 2003 में, 2003, 4, 5। सो 3 साल के बाद फिर मैंने 2004 में नवंबर में अपना जिम ओपन कर दिया था इन दिल्ली। उसके बाद फिर जिम में रन कर रहा था बट compete नहीं कर रहा था। फिर दोबारा मैंने compete किया 2010, 11 और 12 में। देन आफ्टर फिर मैंने थोड़ा क्विट कर दिया, तो कुछ फैमिलीज इशू थे, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे। फिर उसके बाद दोबारा मैंने अपना करियर स्टार्ट किया 2016 में। इन द मंथ ऑफ नवंबर आई कम्पीट इन आयरलैंड, ओके, मिस्टर वर्ल्ड 2016। सो वहाँ पे मेरी 5th प्लेस आई थी। सो नेक्स्ट ईयर 2017 इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, 13, 14 और 15 अक्टूबर का वो टूर था। 13 को बॉडी वेट था, 14 को प्री जजिंग थी और 15 को हमारी मेन था। तो वो मिस्टर वर्ल्ड 2017 था, उसमें मेरी 2nd प्लेस आई थी। बट पता है क्या होता है, 5th आ गई, 2nd आ गई, बट मन में एक ये था कि यार 1st नहीं आ रही है। वो चाहे कोई भी सर्कमस्टांसेस रहे, चाहे कुछ भी हो सकता है। तो फिर उसके बाद सेम ईयर 2017 में दिसंबर में मैं फिनलैंड खेलने गया था, तो वहाँ मेरी 1st आई थी, मिस्टर यूनिवर्स 2017। देन फिर मैं यहाँ पे कनाडा मूव हो गया। तो फिर 2019 में मैंने यहाँ नाइट ऑफ चैंपियन compete किया था, जिसकी ऑर्गेनाइजर तमारा नाइट थी। सो वो यहाँ पे मैंने इन द मंथ ऑफ अगस्त 17 अगस्त 2019 में नाइट ऑफ चैंपियन compete किया था, और उसमें मैंने 6 कैटेगरी में compete किया था। और
भगवान की दया से 6 की 6 मैंने जीती थी उसमें। ओह दैट्स गुड। उसके बाद फिर कोविड आ गया, फिर उसके बाद हर चीज़ स्लो हो गई, फिर अपनी हेल्थ कोई बचा के रखे वही ज़्यादा अच्छा है। बॉडी बिल्डिंग तो बिल्कुल, हाँ। लाइफ रहेगी तो बॉडी बिल्डिंग भी करेंगे ही। सो अब मैं नेक्स्ट ईयर compete करने की दोबारा सोच रहा हूँ इन द मंथ ऑफ जून और जुलाई। ਗੁੱਡ। ये अभी तक है। ਸੰਦੀਪ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਹੈ ਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? बॉडी बिल्डर की लाइफ है ना बहुत डिसिप्लिन होती है। अगर उसमें आप थोड़ा सा भी साइड हट जाते हो तो आप फिर रन नहीं कर सकते उस गेम को, क्योंकि बॉडी बिल्डर्स को घर का भी देखना है, जॉब भी देखनी है, और कितना भी टायर्ड स्केड्यूल हो कुछ भी हो उसको अपने लिए वर्कआउट का टाइम भी निकालना है। बिल्कुल। और इन सब के बाद में उसे रेस्ट का भी टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट रेस्ट आपकी बॉडी ग्रो नहीं कर सकती। डाइट भी प्रॉपर आपको 4 to 5 मील, बेसिक 4 to 5 मील चाहिए। उसमें हर एक चीज़ को आपको कैलकुलेट करना होता है कि कितने ग्राम प्रोटीन अकॉर्डिंग टू आवर टारगेट। अगर मैं गेन कर रहा हूँ तो उस हिसाब से प्रोटीन और कार्ब और फैट का रेशो अलग रहेगा। अगर मैं लीन हो रहा हूँ, मेरे को compete करना है स्टेज पे, उस टाइम पे प्रोटीन कार्ब और फैट का रेशो अलग रहेगा। तो ये सब चीज़ें ऊपर नीचे चलती हैं। ओके, सो इस तरह से मतलब ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਔਰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये रहता है कि थोड़ा सा लोड रहता है कि हाँ ये करना ये करना। उसके बाद जैसे 2, 3, 4 ईयर आप कंटिन्यू compete करते रहते हो अपनी बॉडी पे, तो एक्चुअली एक लाइफस्टाइल है, बिल्कुल राइट। तो फिर जब आप उसको अडॉप्ट कर लेते हो आपको ये चीज़ें नॉर्मल लगती हैं। जस्ट लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो मैं जैसे हम सारे इंडियंस हैं तो स्पेशली नॉर्थ इंडियन, तो हम रोटी के बिना नहीं रह सकते। हाँ बिल्कुल। लेकिन 2016 में जब मैंने compete किया उसके बाद मैंने आज तक बहुत ही कम टाइम पे रोटी खाई है। मैं रोटी नहीं खा सकता, मेरा दिल ही नहीं करता रोटी देखने अच्छा। का। तो बस ये एक लाइफस्टाइल होता है जो हमें अडॉप्ट करना होता है, बस यही रहता है। मतलब हरियाणवी छोरा और रोटी तो बिना रहना ये औखी चीज नहीं, दोनों कॉम्बिनेशन मैच नहीं कर रहे। हरियाणवी हो चाहे पंजाब से हो, रोटी और मीठा। हाँ बिल्कुल, पंजाबी ते हरियाणवी ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ये दो चीजें के बिना हम लोग नहीं रह सकते। एक्चुअली क्या है, रोटी माड़ी नहीं है, रोटी बहुत अच्छी है। अगर आप ये समझो कि रोटी के बिना आपकी बॉडी में एनर्जी आ जाएगी, नहीं आएगी, ठीक है। बट वो थोड़ा बॉडी बिल्डिंग का ये रहता है कि रोटी का जो, एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा साइंस बता देता हूँ। जैसे जो भी फूड हम इंटेक करते हैं उसका एक ग्लाइकेमिक इंडेक्स होता है। उसको खा के हमारी बॉडी को ग्लूकोज मिलता है, मिल्क ग्लूकोज हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। तो रोटी से जो वाटर जो होल्ड होता है ना हमारी टमी, वो सबसे ज़्यादा होता है। बेसिक नॉर्मल लैंग्वेज में बता देता हूँ, साइंस छोड़ देता हूँ। तो उसमें क्या होता है, उसका वाटर ज़्यादा होल्ड होता है, राइस का थोड़ा कम होता है, बोल्ड पोटैटो, स्वीट पोटैटो इनका थोड़ा कम होता है। तो सिर्फ यही होता है। अदरवाइज ऑफ टाइम पे आप लंच में अपना रोटी लो, वो गुड है। ओके, ठीक है। तो रोटी अच्छी है, बट एक्चुअली टारगेट के अकॉर्डिंग होती है। अगर compete करना है तो उस टाइम पे अगर आप रोटी ले रहे हो तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। सेम ये बॉडी बिल्डिंग करा, अगर पहलवानी कर रहे हैं, रेसलर कर रहे हैं, उनका गेम रोटी के बिना होगा ही नहीं। बिल्कुल। सो यही फर्क जो है संदीप, एक आम लोग ਜਿਹੜੇ ਹੈ और एक बॉडी बिल्डर, नो डाउट है दोनों अलग अलग चीज़ां हैगियां ने, बट ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਵੀ ਰਵੇ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੂਟ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ है? तो जो सबसे पहले आपने पूछा कि क्या वो अपनी डाइट में ऐड करें जिससे वो फिट रहे। अच्छा, सबसे पहले तो एक ये चीज़ होता है ग्रीन्स, क्योंकि हम सारे के सारे सब कुछ देख रहे हैं, हर चीज़ प्रोटीन भी देखते हैं, कार्ब भी देखते हैं, फैट है, ग्रीन्स नहीं इंटेक कर रहे हैं। जबकि हमारी बॉडी को ग्रीन्स बहुत ज़रूरी चाहिए, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, एनर्जी के लिए। आप दिन में 2 बार 3 बार अपना जो भी आप मील लेते हैं, नॉर्मल लाइफ का बंदा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली अबाउट बॉडी बिल्डिंग लाइफ, सो उसके साथ ग्रीन जरूर ऐड करो, लेमन जरूर ऐड करो। लेमन से हमें विटामिन सी मिलेगा। विटामिन सी इस टाइम पे जो ये कोविड की प्रॉब्लम चल रही है उसको लड़ने में विटामिन सी और विटामिन D3 ये बहुत फर्क पड़ता है, इससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये रहता है हमारा। तो डाइट में हमें जस्ट लाइक शुगर है, शुगर अगर आपको खानी है, जैसे मैंने अभी बताया हम शुगर के बिना नहीं रह सकते, नॉर्थ इंडियन जो है, उसका हमें पता होना चाहिए कि किस टाइम खानी है।
वर्कआउट आपने किया, वर्कआउट के बाद में आपने ले लिया, अर्ली मॉर्निंग आपने ले लिया, दैट्स ओके। अगर आप सोने से पहले शुगर इनटेक करेंगे तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ओके। ये रहता है। सेकंड, आपने पूछा कि कौन सा फूड सूट करेगा, कौन सा फूड सूट नहीं करेगा। ये कंफ्यूजन एक्चुअली ये कंफ्यूजन, इसके पीछे साइंस ये है कि पहले हमें ब्लड सैंपल चाहिए होता है। ब्लड सैंपल के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी का डाइट प्लान बनता है। उसमें हमें ये देखना होता है कि हाँ भाई इस ब्लड ग्रुप पे ये चीज़ें बेटर वर्क करती हैं, ये चीज़ें बेटर वर्क नहीं। फिर भी ये खुद खा के ही पता चलेगा, क्योंकि सबकी बॉडी की एनाटॉमी अलग है। एग्जैक्टली। राइट, मेरी अलग है, आपकी अलग है, सबकी अलग है। तो ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि सेम चीज, जस्ट लाइक हम एग्जांपल देते हैं ब्रोकली का। राइट, ब्रोकली सुपर फूड है, उसमें जो न्यूट्रिशन है हाँ, बिल्कुल। वो शायद किसी और में है हाँ, नहीं। बिल्कुल। बट ब्रोकली मुझे सूट नहीं करती पर्सनली, मैं आपको अपनी बताऊं, मेरे को ब्रोकली सूट नहीं करती। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। सो कई लोग होंगे ऐसे जिनको नहीं सूट करती हाँ, होगी और वो। किसी को बहुत अच्छी सूट करती है। फॉर एग्जाम्पल एग्स हैं, एग से जो हमें प्रोटीन मिलता है वो सबसे ज्यादा हमारी बॉडी एब्जॉर्व करती है। ठीक है, डाइजेस्टिव अच्छा रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे जिनको एग्स डाइजेस्ट ही नहीं होते। तो ये सारी चीजें बॉडी टू बॉडी डिपेंड करती है। ये नहीं होता पर्टिकुलरली कि हाँ भाई ये चीजें आप खाओ और यू विल गेट फिट। नहीं, ये हमें खुद ही चेक करना पड़ता है कि क्या हमारी बॉडी पे सूट करता है, क्या हमारी बॉडी पे सूट नहीं करता। ਓਕੇ ਸੋ ਸੰਦੀਪ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਜੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਫ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਫੂਡ ਦਾ ਪਚਣਾ, ਉਹਦਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਔਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫੂਡ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਕਿਹੜੇ टिप्स दे रहे हैं सानू, इंडिया वाले या फिर कैनेडियन टिप्स? ओके, इंडिया वाले और कैनेडियन टिप्स वाले ये दोनों है ही नहीं कुछ भी। अच्छा। क्योंकि हमें ये पता है राइट कि हमारी बॉडी को इतना प्रोटीन चाहिए। हमें ये चेक करना है कि कनाडा में आपको उस प्रोटीन के क्या क्या सोर्स रखने हैं। इंडिया में जब हम थे तो ठीक है, चिकन ले लिया, एग्स ले लिए, बिल्कुल, राइट, बीन्स ले लिए। सेम चीज यहाँ पे भी है, चिकन, एग्स, राइस, सब कुछ यहाँ पे भी है। तो ਪਰ ਇੱਕ ਸੰਦੀਪ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਫੁੱਲ ਭਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ ਤਾਂ ਫੈਟ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸੋ ਆਟਾ ਛੱਡੋ। ਐਂਡ ਆਟਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, 버ਗਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿਜ਼ਾਜ਼ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ये बिल्कुल गलत है। आटा माड़ा है ही नहीं। आप कितनी भी रोटियां छोड़ दो, जब आपकी बॉडी में आपको फील होगा कि मैं वीक फील कर रही हूँ, राइट, आप कभी भी चेक करना, 2 रोटी 3 रोटी खाना, उसी टाइम आपको एनर्जी मिलेगी। आटा माड़ा नहीं है। आपको पता होना चाहिए। लिसन, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल, कोई एक चीज है वो बहुत अच्छी है, राइट, पनीर ले लो, एग्स ले लो, एग्स बहुत अच्छी है, तो आपको ये पता होना चाहिए आपको कितने खाने हैं, राइट। आपने 3-4 एग्स आपने खाए, और अगर अच्छे वेट का बॉडी बिल्डर 7-8 एग्स उसने खाए, दैट्स ओके। और अगर आपके ऊपर कोई पिस्टल लेके बैठ जाए और वो आपको ये बोले कि आपको 15 एग्स खाने हैं, तो फिर या तो वॉमिट आएगी या टमी अपसेट होगा। तो ये एग्स का साइड इफेक्ट हुआ। लेकिन एग्स तो अच्छी चीज है, तो अच्छी चीज का साइड इफेक्ट कैसे हुआ? यही चीजें हैं कि आपको पता होना चाहिए कि कितना आपको खाना है, कितना आपकी बॉडी के लिए जरूरी है। यही रहता है। सो ये पता लगाने ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ? ये आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होता है, आपके गोल के अकॉर्डिंग होता है। हम बॉडी पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा अगर गोल है कि 5000 कैलोरीज मेरे को इनटेक करनी है, मेरे को 10 kg वेट बढ़ाना है, तो हम एक साथ से 5000 कैलोरीज नहीं डालेंगे। अगर मैं अभी 3000 ले रहा हूँ, फर्स्ट उसको 3500 पे लेके आऊंगा, देन 4200 पे लेके आऊंगा, स्लोली स्लोली उसको हम, ताकि बॉडी को टाइम मिले डाइजेस्ट करने का, कन्वर्ट होने का। ये रहता है। ओके, सो ਹੁਣ ਆਨੇ ਆ ਸੰਦੀਪ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? सप्लीमेंट का ये रहता है कि आपको नेचुरल सप्लीमेंट लेने, एक अच्छी कंपनी के सप्लीमेंट लो, कोई भी, यहाँ सारे अच्छी कंपनी के हैं, बिल्कुल, राइट। सो आपको प्रोटीन लेना है, अगर
आपको वेट गेन करना है तो आप वे प्रोटीन भी ले सकते हैं। अगर आपको वेट रखना सेम रखना है, वेट गेन नहीं करना है, जस्ट फिटनेस के लिए आप ले रहे हैं तो आइसोलेट प्रोटीन लीजिए। प्रोटीन की भी 3 फॉर्म होती हैं, वे प्रोटीन, आइसोलेट, हाइड्रोलाइज्ड। हाइड्रोलाइज्ड बेस्ट फॉर्म है, फिर आइसोलेट है वो डाइजेस्ट भी अच्छा होता है, और वे प्रोटीन। तो अगर आपको वेट गेन करना है तो आप कोई भी ऐसा प्रोटीन लीजिए, जिसमें कोई भी ऐसा सप्लीमेंट लीजिए जिसमें प्रोटीन भी हो, कार्ब भी हो और फैट भी हो। ओके। अगर आपको मेंटेन रखना है तो आप लीजिए जिसमें कार्ब बिल्कुल ही कम हो, शुगर लो हो और प्रोटीन हाई हो। ये चीज़ें हैं। बाकी बॉडी चेंजेस करने के लिए या अपने टारगेट को अचीव करने के लिए मेरा ये मानना है कि जितना आप नेचुरल पे डिपेंड करेंगे, बिल्कुल। ये सप्लीमेंट सिर्फ आपको ये लगा लो ठीक है आपने वर्कआउट किया, आपने एक स्कूप प्रोटीन पी लिया, दैट्स इट। और इसके अलावा अगर आप ये सोचें कि आप प्रोटीन की जितनी भी हमारी नीड है वो आप सप्लीमेंट से पूरी करेंगे तो वो गलत है। ਓਕੇ ਸੋ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਂजेस ਹੁੰਦੇ ਨੇ? उसमें ये रहता है हमारा कि जैसे लड़कों का और लड़कियों की डाइट सेम रहेगी, हाँ जी। बट टारगेट के अकॉर्डिंग होती है। क्योंकि लड़कियों को 3 kg अगर गेन करना है तो उस हिसाब से उनका डाइट प्लान तैयार होता है कि प्रोटीन इतना, कार्ब इतना, रेशो के हिसाब से। लड़कों को अगर ज़्यादा गेन करना है तो मतलब जस्ट ये टारगेट के अकॉर्डिंग रहता है हमारा। सप्लीमेंट का ये रहता है कि लड़के हैं उनमें क्या रहेगा कि आप प्रोटीन ले लो, वेट लूज करना, फैट बर्नर ले लो। लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है कि कोई भी फैट बर्नर हमें फीमेल को नहीं सजेस्ट करना चाहिए। नेचुरल चीज़ों के साथ जाओ, एल्कानिटीन ले लो, CLA ले लो, ये सब चीज़ें जो नेचुरल हैं। ओके। इन सब चीज़ों क्योंकि फीमेल के साथ प्रॉब्लम, मेल और फीमेल बॉडी में डाइट सेम, सब कुछ सेम रहेगा, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है फीमेल के हार्मोन डिसबैलेंस नहीं होने चाहिए। अगर वो एक बार हो जाते हैं, वो एक बार हो गए, 5 to 6 month उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, फिर मेडिसिन, डॉक्टर्स, बस यही रह जाता है, तो वो गलत है। तो नेचुरल वे में रहो, एल्कानिटिन लो, CLA लो, नेचुरल चीज़ें हैं, इन पे आप जाओ, वर्कआउट अच्छा करो, डाइट अच्छी लो, नेचुरल फूड लो, ग्रीन्स लो। हमारे पास ग्रीन्स में बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो आपका फैट भी बर्न करती हैं और आपका वाटर, जो बॉडी ने वाटर होल्ड कर रखा है उसको भी फ्लश आउट करती हैं। ओके, ਬਿਲਕੁਲ। ये सब चीज़ें। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੀਮੇਲਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਵਾਕਈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਘਰ ਦਾ ਪਿਲਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਪਲੀਮੈਂट्स ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ। शर जी, सबका अपना अपना मानना होता है। मेरा ये मानना है जो वुमेन है ना वो घर का बेस है, पिलर है। अगर घर पे मेल की तबीयत या बच्चों की तबीयत खराब होगी, ओके घर चलेगा। अगर वुमेन की तबीयत खराब होगी घर नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो बेस है। उसको फैमिली का भी देखना है, उसको हस्बैंड का भी देखना है, उसको घर का भी देखना, उसको खाना भी बनाना है, उसको बच्चों का भी देखना, अपनी जॉब भी करनी है, सारी चीज़ें हैं। तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मेल कुछ नहीं करता, बट मेरे हिसाब से अगर मेल के शोल्डर पे अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी 30% है तो फीमेल पे 70% है घर को चलाने की। बिल्कुल, हाँ। ये रहती है, तो उनका फिट होना बहुत जरूरी है। उनको जिम भी करना चाहिए अपने लिए। मैं मानता हूँ उनके ऊपर लाइबिलिटीज ज़्यादा हैं, थोड़ा ज़्यादा जिम्मेदारियां रहती है, लेकिन उनको अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल के वर्कआउट जरूर करें। अगर वो फिट हैं तो वो अपने घर को, अपनी फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से रन कर पाएंगे। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? फिर वही चीज़ आ जाती है जी, सप्लीमेंट का कोई नुकसान नहीं है अगर आप उसको तरीके से आप लेते हैं। ओके, सो यदि जानकारी होए तो ठीक है। हाँ, मैं आपको वही कह रहा हूँ, नेचुरल सप्लीमेंट, कोई बैन सब्सटेंस नहीं। ठीक है। सिर्फ यही है, आपको कॉफ़ी लेनी है, कैफीन लेनी है, आप कॉफ़ी पी लीजिए। आप वैसे कॉफ़ी कैफीन क्यों खरीद रहे हैं, आप मत लीजिए। तो सिर्फ यही चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, आप उस पर रहिए। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੰਦੀਪ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਵਰਗੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨਾ? ਕੀ ਉਹ ਬਾਡੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਓ? ਆ ਕਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ? देखो जी, जो मसल बिल्डिंग है ना, ये स्लो प्रोसेस है। मेरे पास भी बहुत बच्चों के बहुत
क्लाइंट्स के या वैसे ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड मैसेज आते हैं कि भाई 3 महीने बाद शादी है और मेरे को इतना इतना वेट लो, वो नहीं होगा। ओके। बॉडी चेंजिंग एक स्लो प्रोसेस है, स्लोली वर्क करेगी, क्योंकि कोई भी चीज़ कोई भी फूड बॉडी में जाएगा वो डिज़ोल्व होगा, उससे वो हमारे ब्लड में मिक्स होगा, उसके बाद वो वर्क करेगा, कि ये प्रोसेस है। तो हमें पेशेंस रखना चाहिए, जल्दबाजी कभी नहीं करनी चाहिए। हमारे बड़े बूढ़े एक बात कहते हैं कि जो जितनी जल्दी आएगा वो उतनी जल्दी जाएगा, तो शॉर्टकट मत अपनाओ, इसमें सिर्फ टोटली नुकसान है और कुछ नहीं है। बिल्कुल। अब बात आपने की थी इंजेक्शन की, स्टेरॉइड की, तो वो हमें बिल्कुल नहीं यूज़ करनी, बिल्कुल नहीं यूज़ करनी चाहिए। कोई भी स्टेरॉइड किसी भी तरीके कुछ नहीं यूज़ करना चाहिए। हमारी लाइन में जो हम compete करते हैं उनमें वो सब चीज़ें ऐड लोग करते हैं, बट नहीं करनी चाहिए। आपके यहाँ पे, हमारे इंडिया में उस टाइम पे नहीं होता था जिस टाइम पे मैं था, लेकिन अब तो यहाँ पे नेचुरल बॉडी बिल्डिंग इतनी अच्छी हो रही है। आप नेचुरल रहो, नेचुरल में आपके पास बहुत अच्छे, थोड़ा टाइम लगेगा। अगर स्टेरॉइड कोई बंदा लेता है वो 4 मंथ 5 मंथ 6 मंथ में ओके वो अच्छा दिखने लग जाएगा, तो नॉर्मली आपको 1.5 ईयर लगेगा, राइट। बट आप अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? बिल्कुल नहीं कर, क्योंकि लाइफ ये 2 बातें हैं, लाइफ 6 महीने साल 2 साल की नहीं है, पूरी लाइफ आपको ये बॉडी रखनी है, बिल्कुल। राइट। तो अच्छी बॉडी रखने के लिए आप नेचुरल पे रहो, नेचुरल फूड लो, बहुत अच्छे नेचुरल सप्लीमेंट्स आपके यहाँ मिलते हैं कनाडा में यूएस में नेचुरल सप्लीमेंट बहुत अच्छे हैं, आप वो रखो। दूसरी चीज, एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए, कभी नहीं बोलनी कि हमारी लाइफ सिर्फ हमारी नहीं है, बिल्कुल, राइट। मैं हूँ, मेरे साथ अगर मैं कुछ अपनी बॉडी के साथ छेड़छाड़ करता हूँ, मुझे कुछ नुकसान होता है, तो मेरी वाइफ भी हैं, बच्चे भी हैं, मॉम डैड, हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां, तो उनका भी हमें सोचना। तो स्टीरॉयड मेरे हिसाब से कभी नहीं लेने चाहिए। हाँ, एक्सपेरिमेंट अगर आप फूड के एक्सपेरिमेंट करो कि हाँ कभी आपने कार्ब बढ़ा लिया, हाँ, आपने चेक किया मेरी बॉडी वाटर होल्ड कर रही है तो कार्ब डाउन करके प्रोटीन इंटेक बढ़ा दो, तो ये आप फूड के साथ करो, बट टैबलेट्स और इन सब चीज़ों का बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सप्लीमेंट भी सिर्फ आप ये लगा लो, सिर्फ 1 टाइम इंटेक करो, वर्कआउट के बाद में प्रोटीन ले लिया। सप्लीमेंट संदीप जरूरी होंगे नहीं लेने? एक्चुअली जरूरी होते भी है, नहीं भी होते, क्योंकि हमारे आज के टाइम पे बिजी स्केड्यूल हाँ, बिल्कुल, ठीक है। तो हमें जस्ट लाइक हमें वर्कआउट किया, वर्कआउट के बाद में हमें कहीं और निकलना है, हमारा फूड नहीं है, आपने ठीक है उसी टाइम आपकी बॉडी को 35-40 ग्राम प्रोटीन चाहिए, आपने स्कूप ऐड किया, ड्रिंक किया, पी के निकल गए, तो दैट्स गुड। अगर आप ये सोचो, फिर जो मैंने बोला था कि प्रोटीन के आपने ठीक है 3 स्कूप 4 स्कूप आप ले रहे हो दिन में, नहीं लेना, नेचुरल फूड रहो। सबकी अपनी अपनी राय थी। मेरा पर्सनली ये है कि कोई बिलीव करे ना करे, जैसे मैं compete करता हूँ तो बिफोर 1 मंथ मैं प्रोटीन भी बंद कर देता हूँ सप्लीमेंट से, नेचुरल फूड से। वर्कआउट किया, सिर्फ अपनी डाइट ली, चिकन स्वीट पोटैटो या पोटैटो जो भी है वो ली, सप्लीमेंट में नहीं लेता। तो सबका अपना अपना है, बट आप अगर सप्लीमेंट ले रहे हो, नेचुरल ले रहे हो, ये माड़े नहीं है, अच्छे हैं। बिल्कुल। आपको गाइडेंस होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या आपको यूज करना है, बस। सो संदीप, कई लोग है ਜਿਹੜੇ ਬੋਡੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਨਾਨ ਵੈਜ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਸੋ ਵੈਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਉਹ ਹੋ वेज के ਸਕਦਾ अंदर चीज़ ऑफर बहुत अच्छे सोर्सेज हैं Okay. हमारे पास। जरूरी नहीं, एक्चुअली जो हमारी बॉडी है ना वो नॉन वेज के लिए बनी ही नहीं है। फॉर एग्जांपल हम रेड मीट इनटेक करते हैं, हमारी बॉडी 72 आवर्स लेती है उसको प्रॉपर एब्जॉर्ब करने में, 72 आवर्स तक वो हमारी बॉडी में है। तो फिर उसके बाद आप और ऐड करे जा रहे हो, और दिन में आपने 3 मील 4 मील लिया, वो ऐड करे, तो हमारी बॉडी का जो इंटरनल सिस्टम है, लीवर है वो कैसे वर्क करेगा, वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगा। आपका लीवर स्लो डाउन हो गया, आपका जब डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, तो उसके बाद में फिर आपकी बॉडी ग्रो कैसे करेगी। हमें वेजिटेरियन में बहुत अच्छे हमारे पास सोर्सेज हैं, बीन्स हैं, राइट, पनीर है, बिल्कुल, टोफू है, बहुत अच्छे सोर्सेज हमारे पास हैं। हाँ, वो टेक करें, ग्रीन्स लें अपनी। बिल्कुल। अभी इन द मंथ ऑफ अगस्त अभी एक लड़का था यहाँ पे जिम में, उसकी मैंने हेल्प की थी, प्योर वेजिटेरियन वो compete भी किया, उसने खेला भी, वो जीता भी, वो सब कुछ है। तो ऐसा नहीं है कि नॉनवेज हमें खाना जरूरी है, नहीं, वेजिटेरियन आप रहो, अच्छा ग्रो करेगी बॉडी। बट वही सेम चीज़ है, हमें पता होना चाहिए हमें क्या खाना है। बिल्कुल। आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, मोस्टली यंग जनरेशन क्या कर रही है, बस गूगल करती है, गूगल पे वो देखते हैं, सारे प्रोडक्ट देखते हैं, उनके रिव्यूज देखते हैं, जबकि जनरली है गूगल पे जो रिव्यूज होते हैं ना वो खुद ही कंपनी ने डलवाए होते हाँ, हैं, फेक होते तो बस। तो इस पे गूगल पे, यूट्यूब पे बिलीव मत करो, अपना नेचुरल रहो, वो सबसे अच्छा है।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਈ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਸੰਦੀਪ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਡਾਈਟ ਐਂਡ ਆਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? जस्ट लाइक अगर मैं आपको कंपटीशन का ही थोड़ा सा आपको लाइन अप बता देता हूँ। जैसे कंपटीशन है हमारे पास 4 महीने हैं, तो हम प्रोटीन थोड़ा सा डाउन करके कार्ब अप रखेंगे, फैट नॉर्मल रखेंगे। ओके। जैसे हमारे 2 मंथ्स रह गए तो प्रोटीन थोड़ा अप करेंगे, कार्ब साइकिल चलाएंगे। कार्ब साइकिल किसे कहते हैं कि जैसे विद एवरी मील 2 डेज तक हम 150 ग्राम कार्ब यानी कि 150 ग्राम स्वीट पोटैटो विद एवरी मील लिया। ओके। 2 दिन बाद 100 ग्राम लिया। 2 दिन बाद 50, इट्स कॉल्ड कार्ब साइकिल। तो हमें प्रेप के अंदर ये करना होता है कि हमें कार्ब चेक करना रहता है, अपनी बॉडी चेक करनी है, वाटर होल्ड तो नहीं कर रही है। उसके बाद जैसे 10 डेज रह जाते हैं तो हमें कार्ब बिल्कुल ही डाउन करना पड़ता है। एवरी मील 10 ग्राम 20 ग्राम स्वीट पोटैटो लाइक दिस, ये करना पड़ता है। 4 दिन पहले हमें साल्ट डिप्लीट कर साल्ट बंद करना पड़ता है। वाटर इनटेक थोड़ा हमें ध्यान रख के करना पड़ता है बॉडी को, तो चेंजेस करते रहने पड़ते हैं। तो उसमें फिर हमें काफ़ी रिस्क भी रहता है, एनर्जी लेवल भी डाउन जाता है हमारा, क्योंकि जब बॉडी चलती तो कार्ब और शुगर से ही है ना। तो बस वो नहीं होता, तो पर गेम है, शुरू से हैं तो करते हैं अच्छे। ਸੋ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਲੈਣ ਦੇ? एक्चुअली जो हम सोच रहे हैं उस चीज़ में हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, ਪਰ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੀ ਆ, क्योंकि ਸਟੀਰੋਇਡ वो ਜਿਹੜੇ ਆ क्विक चाहते हैं, वो क्विक चाहते हैं। ਹਾਂ ਕੁਇਕ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਕੁਇਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਓਵਰਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸੰਦੀਪ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। बिल्कुल। तो सबसे पहले जो स्टीरॉयड है ये बेसिकली हार्मोन है, राइट। कोई भी नेम का स्टीरॉयड उठा लो, सारे हार्मोन हैं, राइट। कुछ स्टीरॉयड ऐसे हैं जो कि एनिमल्स के लिए बने हैं, जो हम यूज़ कर रहे हैं अभी, मतलब जितने अभी करंट में हम ह्यूमन बीइंग यूज़ कर रहे हैं, सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, यंग जनरेशन यूज़ कर रही है कि हमें जल्दी रिजल्ट मिल जाए, हमारा बाइसेप बड़ा हो जाए, हमारी बॉडी ग्रो कर जाए। वो कोई भी सिंथेटिक हार्मोन हमारी बॉडी में जाएगा, वो हमारे नेचुरल जो हार्मोन हैं बॉडी में उन पे इम्पैक्ट डालता है, राइट। जो हमारा नेचुरल हार्मोन जैसे मेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन होता है, उस पे इम्पैक्ट डालेगा। कोई भी एंड्रोजेनिक सॉल्ट बॉडी में जाएगा, ये सारे स्टेरॉयड एंड्रोजेनिक रहते हैं, तो वो हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन बनाता है। एस्ट्रोजन जो है फीमेल हार्मोन है। जब मेल हार्मोन के अंदर फीमेल हार्मोन बढ़ता है तो मेल हार्मोन डाउन जाएगा, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगी। टेस्टोस्टेरोन से आपको सेक्स प्रॉब्लम्स आ सकती है, आपकी बोन्स वीक हो जाएगी, आपकी स्किन प्रॉब्लम आएगी, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी। ये हमें आया बाहर से। सेकेंडली हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। ब्लड है, ब्लड थिक हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाएगा। तो अगर इसको मार्किंग करें 100 में से 100 इसके नेगेटिव ही हैं, पॉजिटिव नहीं है। कुछ टाइम के लिए लगता है कि हाँ भाई हम बहुत अच्छे दिख रहे हैं, पॉजिटिव है, बट वो पॉजिटिव नहीं है। उसको आपको 5-6 महीने, आप 5 to 6 मंथ आफ्टर आपको फील होने लग जाएगा। और ऐसा नहीं है कि एक बार हार्मोन डिसबैलेंस हो गए तो उसके बाद आपने डॉक्टर के पास गए, उसने मेडिसिन दी तो वो आप एकदम से आप वो कर लोगे, नहीं, ये प्रॉब्लम रहेगी। दूसरी एक प्रॉब्लम ये रहती है, कोई भी स्टीरॉयड हम बॉडी में डालते हैं वो इंसुलिन के साथ वर्क करता है। कोई भी स्टीरॉयड है, कोई ये कह दे कि ये स्टीरॉयड इंसुलिन को नहीं छेड़ता, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इंसुलिन के साथ ही वर्क करता है। अगर इंसुलिन के साथ, अपनी बॉडी की इंसुलिन के साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हो, राइट, अगर आपको डायबिटीज होगी तो आप अपना नुकसान नहीं कर रहे हो, आने वाले अपने जितने भी आपके बच्चों के बच्चे होंगे उन सब का नुकसान कर, उनको भी कभी भी मिल सकती है आपके ब्लड से, कभी भी उनमें हो सकती है। तो आप क्यों कर रहे हो? ये तो हुआ स्टीरॉयड। अब आज के टाइम पे और एडवांस फॉर्म में जाते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं कि इंसुलिन डायरेक्ट ले रहे हैं बाहर से कि बॉडी थोड़ा ग्रो करने के लिए। ठीक है, 1-2 महीने में अच्छे दिखने लग जाते हो आप। इंसुलिन बहुत बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है बॉडी पे, बट किस लिए? इंसुलिन अगर आ गया, जैसे मैंने अभी बताया, बाहर से सीधा इंसुलिन डाल रहे हैं, इंसुलिन की प्रॉब्लम्स बहुत रहती हैं। पहली चीज आपकी नेचुरल इंसुलिन के साथ छेड़छाड़ है, सॉरी। सेकंड थिंग, इंसुलिन ये रहता है कि उसके बाद आप लेजी फील करते हो। बिल्कुल, हाँ। जैसे आपने इंसुलिन लगाया, आपने डाइट तो ले ली, आपके जो कोचेज हैं जो आपको इंसुलिन सजेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने आपको बता दिया
लेकिन इंसुलिन का ये है कि एक बार आपने शॉट लगाने के बाद उसके बाद 3 घंटे के अंदर 3 घंटे तक आप सो नहीं सकते और आपको नींद बहुत आती है। Yeah. 1 घंटे बाद दोबारा इम्पैक्ट आता है, उसी सेम इंसुलिन जो आपने 1 घंटे पहले लगाया था, उसके बाद आपने कार्ब भी डाल लिया, शुगर भी डाल, फिर इम्पैक्ट आएगा। Okay. और अगर आप सो गए हो और वो इम्पैक्ट आ गया है, कभी इंसुलिन का अटैक फिर आ गया आपको, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। आप उसी टाइम आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे। जी। तो जब इतना ज़्यादा रिस्क है तो आप क्यों ले रहे हैं ये चीज़ें? कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप हेल्दी रहो, वर्कआउट करो, अच्छा वर्कआउट करो, आप अपना मसल ट्रेनिंग करो, कार्डियो करो, हार्ट को अच्छा रखो, ये लो, डाइट लो, अच्छी लो। बिल्कुल। सब कुछ सारे सोर्सेज हैं। चलो हमारे इंडिया में इतने सोर्सेज नहीं थे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, स्पार्गस। बिल्कुल। स्पार्गस एक हाँ। फूड है, राइट, लेकिन इंडिया में मिलता ही नहीं है। मिलता है तो फिर वो इंटरनेशनल फूड पे मिलता है, वो इतनी सी स्पार्गस जाके मिलती है 1000-1500 की, इतनी सी जो कि 2 टाइम पे ही खाई जाती है। लेकिन यहाँ पे तो इजीली अवेलेबल है, तो आप ये सब चीजें लो, बढ़िया रहोगे। एक चीज और मैं आपको एक टिप देता हूँ, जैसे कि हम अपनी बॉडी का वाटर आउट करने के लिए डायरेटिक्स लेते हैं। डायरेटिक्स सच में बहुत गलत चीज है वाटर निकालने के लिए। ओके। ये लीन दिखने के लिए हम वाटर आउट कराते हैं बॉडी का। उससे बढ़िया आप हर्ब लो, पार्सले। पार्सले आप लो, हर ग्रोसरी स्टोर पे पार्सले इजी अवेलेबल है और इतनी कॉस्टली भी नहीं, बहुत चीप ही है। हाँ जी। पार्सले आपने ली, उसको आपने थोड़े पानी लिया, उसमें डाला, बॉईल करो, बॉईल करके अपना वो पियो आप, वो सारा आपका वाटर फ्लश आउट कर देगा, आपको जरूरत ही नहीं है। ओके। और आपको जल्दी करना है, फैट बर्न करना है, फॉर फीमेल भी मैं आपको बता देता हूँ, मेल भी, आपके किचन में वो सब चीजें हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हैं। आपको जरूरत ही नहीं है बाहर से कुछ करने की। बाउल लिया, पानी लो, उसमें 1 चम्मच जीरा डालो 1 लीटर वाटर में, उसको बॉईल करो। बॉईल करने के बाद में अच्छा खासा बॉईल कर लो, वो सिर्फ छोटे छोटे 3 गिलास रह जाएगा, लाइक दिस। ठीक है। उसको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के टाइम पे जब भी खाना खाओ, उसको थोड़ा माइक्रोवेव में अपना गर्म करो उस पानी को, और उस टाइम पे उसको पियो। विद इन 1 वीक खाना खाने के बाद? हाँ, विद इन 1 वीक आप देख लेना आपकी बॉडी से सारा वाटर आउट हो रहा है। ओके। तो ये नेचुरल फैट बर्नर है जो थर्मोजेनिक प्रॉपर्टीज रखते हैं। थर्मोजेनिक प्रॉपर्टीज यही होती है कि आपकी बॉडी का जो वाटर होल्ड जो बॉडी ने कर रखा है, स्पेशली बेली फैट पे, वो सारा फ्लश आउट हो जाएगा। ओके। तो यही रहता है। तो टोटली ओवरऑल यही है कि स्टेरॉइड ना लें तो ज़्यादा बेटर है, दैट्स गुड। कोई फायदा नहीं है। ਸੋ ਕਈ ਟ੍ਰੇਨਰ ਔਰ ਕਈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਚਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਈਏ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਖਾ ਲਓ, ਉਹ ਖਾ ਲਓ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਚ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਕੋਚ ਦੀ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ट्रेनर ਦੀ ਕੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਦੀਪ? जो आज के टाइम पे चल रहा है ना, कोचेज आज के टाइम पे जो कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। सिर्फ अपना पैसा बनाने के लिए, अपनी मनी मेकिंग के लिए वो आपको कुछ भी दे रहे हैं। ये सब अवेयरनेस जो आएगी, हाँ जी। इस सब चीज को रोका जाएगा, हम खुद ही रोकेंगे। जब आपको आपका कोच कोई भी चीज सजेस्ट करता है तो वो आपको पता होनी चाहिए कि आपको लेनी है या नहीं लेनी है। उसको तो अपनी, वो तो एक तरीके से आपके जो आपने हायर किया अपने फायदे के लिए, लेकिन वो अपना फायदा देख रहा है, आपसे ट्रेनिंग की मनी भी ले रहे हैं, राइट। दूसरा, वो आपके सामने शॉपकीपर भी बन गया, वो अपने प्रोडक्ट भी आपको सेल कर रहा है, तो जिसमें उसको अच्छा मार्जिन होगा वो ही देगा। तो वो सब चीजें आप स्टॉप करें, आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट थिंग, सबसे पहले एक चीज ये रहती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जो कोच हायर किया है वो कितना नॉलेजेबल है। हाँ, उसके बारे में भी जानकारी। आज के टाइम पे क्या कर रहे हैं लोग, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे आके किसी किसी टॉपिक पे नॉलेज देते हैं, उनके फॉलोअर्स बढ़ते हैं या वो बढ़वा लेते हैं, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। लोग उनको देखते हैं, उनको लगता है इनको बहुत नॉलेज है, और फिर वो उनको सजेस्ट करते हैं, लेकिन एट लास्ट वो नुकसान ही करते हैं। तो आपको पता है इनको एक्सपीरियंस कितना है, इन्होंने खुद आज तक क्या अचीव किया है। ऐसा नहीं है, आप एक चीज, जितने भी व्यूअर्स इस टाइम पे देख रहे हैं और कुछ भी है, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि अगर किसी बंदे की अच्छी बॉडी है तो उसको नॉलेज भी होगी, ये जरूरी नहीं है। तो आप खुद सोच समझ के कोच अपना हायर करें जिसको नॉलेज हो, पहले बात करो, कुछ 2-3 उनसे क्वेश्चन पूछो, खुद उनका इंटरव्यू टाइप लो कि आपकी ये हमारी क्यूरीज हैं जी, ये आप हमें प्लीज इनका आंसर दीजिए, तो आपको खुद पता चल जाएगा। और कोई भी प्रोडक्ट, कोचेज आज के टाइम पे नेम लेबल हटा के भी उनको दे रहे हैं कि ये लो, ये सुबह बिल्कुल नहीं लेना। आप पहले देखो, जो भी कोचेज आपको कोई भी नेम सजेस्ट कर रहे हैं उनको बोलो सर नेम बता दीजिए, उनके चेक करो,
पढ़ो उनके बारे में, बहुत अच्छी अच्छी साइट्स हैं, उन पे अपना डाल के, उसका गूगल पे नाम डाल के उनका पढ़ो कि उनके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, उसके बाद उसको लो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। प्रोटीन लो, नेचुरल सप्लीमेंट इज द बेस्ट। ਜੀ ਸੋ ਸੰਦੀਪ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਾਈਡੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਦੀਪ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਗਾਈਡ ਕਰੋ, ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਕੋਲ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ? नेक्स्ट लेवल फिटनेस, ये 76 किंग जॉर्ज पे है। ਓਕੇ। ये फूड एंड सप्लीमेंट स्टोर है। आप किसी भी टाइम यहाँ पे आके कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बना के आके फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कुछ भी, आपको फिटनेस के रिगार्डिंग या आपको डाइट के रिगार्डिंग या आपको वर्कआउट प्लान के रिगार्डिंग कोई भी बात है, कोई भी आपके मन में क्वेश्चन है, आप आए, डायरेक्ट आए, बैठें, बात करें, तो आप सारी चीज़ें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प करूँगा। सीरियसली मेरे को सच में इस चीज़ में हेल्प करने में बहुत अच्छा लगता है। ਸਿਹਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਨੇ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਫਲੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी। तो जो ये हमारे कोविड की प्रॉब्लम जो आ रही है, मैंने स्टार्टिंग में भी जब ये स्टार्ट हुए तो मैंने जितने भी मेरे नोन में हैं सबको मैंने यही बोला था कि विटामिन सी एंड विटामिन D3 इनको कभी मत रुकने देना, ये हमें यूज़ करनी ही करनी है। ओके। बहुत सी हर्ब्स हैं जस्ट लाइक एस्ट्रागुलस, ये आप किसी भी हर्बल स्टोर पे आप देख सकते हैं, वो आप इनटेक करो, इम्यून सिस्टम बढ़ाएगा। नेचुरल जो इम्यून सिस्टम बढ़ाने वाली चीज़ें हैं आप उन पे डिपेंड हो जाओ, आपको कोई कोविड कोई परेशानी नहीं करेगा। देखो मैं ये नहीं कह रहा विटामिन सी और विटामिन D3 लेंगे आपको कोविड आप पे अटैक नहीं करेगा, हो सकता है आएगा, राइट, बट इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, हाँ, लड़ने की शक्ति तो आ ही जाएगी, आपको वो इतना इम्पैक्ट नहीं डाल के जाएगा, राइट, रिकवरी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो बाकी सब चीज़ें नेचुरल फूड सब कुछ तो लेना ही है, बट साथ साथ में विटामिन सी और विटामिन D3 जरूर लें। ओके, बिल्कुल। सो आखिर में संदीप क्या मैसेज देना चाहेंगे, की कहना चाहोगे? और ये दोनों ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੀ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਸਕ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵੇ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਮੈਸੇਜ ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਹਰਿਆਣਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। जी आखिर में बस यह बात है कि बढ़िया खाओ, बढ़िया तरह रहो और अपने आप को थोड़ा सा सतर्क रखो, बड़ा बहुत सतर्क रखो कि हम क्या खा रहे हैं, तो हमारा कोच हमने के दिन लाग रहा है, तो इस पर ध्यान दो और अपना फिट रहो। कोई भी चीज़ की दिक्कत है, कोई भी चीज़ पूछनी हो तुमने तो उसी द नेक्स्ट लेवल स्टोर आ जाओ, नेक्स्ट लेवल फिटनेस 76 किंग जॉर्ज पे है, आड़ा आगे तुम पूछ सको हो, मैं तारी जितनी हो सकती होगी उतनी हेल्प करूँगा। ओके, आई थिंक हिंदी ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ, ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਬਾਡੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। जी सेम वही बात है, नेचुरल डाइट पर रहो, कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी तरीके का स्टेरॉइड लेने की। वर्कआउट बढ़िया करोगे, गनी तो गनी 6 महीने में बढ़िया बॉडी तैयार हो जाएगी, इस तो फालतू टाइम ना लगता, बाकी धीरे धीरे तो ग्रोथ होएगी जी। पर यह है कि स्टेरॉइड लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, टेम्परेरी रूप में तब ना लगेगा कि हाँ भाई फ़ायदा होया है, बट वो फ़ायदा ना, वो बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो इन चीज़ों ने अवॉइड करो, नेचुरल रहो, बढ़िया रहोगे। सलमान खान, ऋतिक रोशन, संजय दत्त ये कोई एक दिन में तो बने नहीं। जब तुम इनकी मूवी ठाक देखो, स्टार्टिंग में सलमान खान किसा था, बिल्कुल, हाँ, और एंड में जाते 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 कितना बढ़िया हो गया था। बस वो एक प्रोसेस है, जितना इस पर फॉलो करोगे, जितना इस पर कंसिस्टेंसी दिखाओगे, उतना बढ़िया रिजल्ट तुम्हें मिल जाएगा। बस ये संदीप डांगी, थैंक यू सो मच, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। थैंक यू जी।
ਸੋ ਸੰਦੀਪ ਡਾਂਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਵਾਕਈ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਿਹਤ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਟ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਵੀਕਐਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।